لیاقت آباد میں نامکمل ہونے والے ترقیاتی کام منصب عوام کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ سندھی ہوٹل کے شاہراہ پر سیوریج لائنوں کی تنصیب تو کر دی گئی لیکن سڑک تعمیر نہ ہو سکی۔ علاقے میں دھول مٹی سے جینا محال ہو گیا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ ترقیاتی منصوبے یا درد سر، لائنوں کی تنصیب کاری ہو گئی، سڑک تعمیر نہ ہوئی۔ لیاقت آباد میں سیوریج کی لائنوں کی تنصیب کاری تو کر دی گئی لیکن سڑک ادھوری چھوڑ دی گئی۔ سندھی ہوٹل والی شاہراہ کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند ہو گیا۔ سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ 6-7 ماہ سے ترقیاتی کام چل رہا ہے، یہ مکمل ہو تو سکھ کا سانس لیں۔ وہ بہت ٹائم ہو گیا، ہمارا کاروبار سارا ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے نا۔ پارٹی ادھر سے نہیں آتی، دیکھ رہے ہیں آپ روڈ، ایک ہی روڈ پہ دونوں گاڑیاں چل رہی ہیں اور یہاں تو بری حالت ہو رہی ہے، بیٹھ نہیں سکتے آدمی، مٹی آتی ہے، گاڑی نہیں آتی، مٹی اڑتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے بہت۔ میں سے یہی بولتا ہوں یار جلدی اس کو بنا دیں، اس کو، اس ہمارے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں ایک کام کیا جاتا ہے تو دوسرا بگاڑ دیا جاتا ہے۔ مکینوں نے حکام سے ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی درخواست کی۔ کیمرامین سید تابش کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ گیس کی بندش اور بجلی کے مسائل شہریوں کا جینا محال کر چکے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھاری بھرکم بلوں نے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی میں گیس اور بجلی کے مسائل حل نہ ہو سکے، شہری آج بھی لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور۔ شہر کے مختلف علاقے بجلی اور گیس کے مسائل کی زد میں ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس کی اچانک بندش اور پریشر میں کمی ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے اور بجلی کی بھی متعدد بار تعطیلی معاملاتی زندگی کو دھرم برہم کر دیتی ہے، جبکہ بھاری بھرکم بلوں نے کمر توڑ رکھی ہے۔ تقریباً جب بجلی جاتی ہے اکثر و بیشتر جو ہے گیس بھی اسی وقت جاتی ہے نا، اور جب بجلی جاتی ہے تو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے جو ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے تو 3 گھنٹے نہیں ہوتی ہے، تو 3 گھنٹے پھر گیس بھی نہیں ہوتی ہے۔ بجلی کے ساتھ ساتھ گیس بھی چلی جا رہی ہے آج کل نا۔ بل تقریباً اب سب کے بھرے جاتے ہیں۔ ایک گلی کے اندر اگر 200 گھر ہیں، 200 گھر میں سے 2 گھر نہیں بھر رہے ہیں تو کیا 200 کو آپ تکلیف دیں گے؟ شہر میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹوں تک جا پہنچا اور 8.5 گھنٹوں سے زائد گیس غائب رہنے لگی۔ ترجمان سو سیڈن کے مطابق گیس کی بلا تعطل فراہمی کے لیے لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے، جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کشمیر کالونی کے مکین گیس کی قلت سے پریشان۔ علاقہ مکین کھانے کی تیاری کے لیے گیس سلنڈر اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی میں گیس بحران ختم نہ کیا جا سکا۔ کشمیر کالونی میں گیس بندش معمول بن گئی۔ مکین گیس کی بندش کے باعث مشکلات کا شکار۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دن بھر گیس کے مسائل جھیلنے پڑتے ہیں، رات سے صبح تک گیس بند کر دی جاتی ہے، دن کے اوقات میں بھی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھر میں ناشتہ بن پاتا ہے نہ ہی کھانا، ہوٹلوں سے کھانا لانے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے آمدنی کا بڑا حصہ خرچ ہو جاتا ہے۔ گیس آ نہیں رہی، ہم لوگ گیس کے بل ادا کر کے تھک گئے ہیں۔ صبح بھی کھانا ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، بھوکا جاتا ہوں، اور شام میں بھی گیس نہیں آتی، صبح بھی نہیں آتی۔ بس صبح آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر شام تک، دوپہر کو بھی سب پورا دن بند رہتی ہے، تو ہم باہر سے کھانا وانا لا کے کھاتے ہیں، ہم کو بہت پریشانی ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرامین حسن عزیز کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ مہنگی بجلی کے باعث ماربل انڈسٹری 75% بند ہو گئی۔ آل کراچی ماربل ایسوسی ایشن کے صدر کہتے ہیں کہ بجلی کے بل قوت برداشت سے باہر ہو گئے ہیں، صرف 25% انڈسٹری کام کر رہی ہے۔ فیاض رانا کی رپورٹ۔ مہنگی بجلی کے جھٹکوں نے کاروبار کی سانسیں بند کر دی، ماربل انڈسٹری بھی مفلوج ہو گئی۔ آل کراچی ماربل ایسوسی ایشن کے بانی صدر عنایت الرحمان کہتے ہیں کہ اس وقت ماربل کی 75% انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ 8 گھنٹے کٹنگ مشین چلانے پر بجلی کا بل 20 لاکھ روپے سے زائد آتا ہے۔ بجلی کے بل تو اس وقت اپنے برداشت سے باہر ہو چکے ہیں، اور انڈسٹری ہماری تقریباً 25% چل رہی ہے، 75% آف ہے۔ اس وقت ہمیں جو پر یونٹ پڑ رہا ہے وہ تقریباً 72 پڑ رہا ہے۔ ایم ڈی آئی کے ریٹ ان لوگوں نے بہت زیادہ کر دیے ہیں، 180 پلس ہے، تو ہم تقریباً جو ہے نا بجلی کے وجہ سے شاید کہ ہم لوگ اپنا کام بند کر دیں۔ ماربل کے کاروبار سے منسلک تاجروں کا کہنا ہے کہ مہنگی بجلی نے کاروبار تباہ کر دیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم 8 گھنٹے پراپر ہماری مشینیں چلیں تو 2 ملین پلس آ جاتا ہے ہم لوگوں کے بل۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ابھی سولر پینل پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی اتنی اس کی کاسٹ زیادہ ہے کہ ہر بندے کے لیے وہ ناممکن ہے۔ ماربل ایسوسی ایشن نے موسم سرما میں زیادہ بجلی کے استعمال کے حکومت کے پیکج کو غیر مؤثر قرار دیا۔ کیمرامین حسن عزیز کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔
जेल चुरंगी से पीआईबी कॉलोनी जाने वाली शाहराह तबाही के दहाने पर पहुंच गई। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से लाइन की लीकेज की मरम्मत तो कर दी गई, लेकिन सड़क को तामीर ना किया जा सका। इलाके में धूल मट्टी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। सैयद नौमान गुल रिपोर्ट करेंगे। कराची की सड़कें तबाही की दास्तां सुनाने लगी। जेल चौरंगी से पीआईबी जाने वाली सड़क भी महफूज न रही। वाटर कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से लाइन की लीकेज की मुरम्मत के बाद सड़क पर मट्टी डाल दी गई। धूल मट्टी के बाइस इलाके में शहरियों को सांस की बीमारियां होने लगी। शहरी कहते हैं 20 रोज से सड़क पर धूल मट्टी का राज है। कपड़े खराब हो रहे हैं और सांस लेने में भी दुश्वारी है। उस काम को भी हुए तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है और उसके बावजूद भी इन्होंने माल वाल ला के डाला हुआ, मगर सड़क अभी तक तामीर नहीं हुई है। यहाँ के जो शहरी हैं, रिहायशी हैं, वो ज़हरी अजियत का शिकार हैं। मेरी मुतल्लका हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा इसकी हालत ज़ार पे रहम करें और इस सड़क को तामीर करवाएं। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क पर गाड़ियों के एक्सल टूट रहे हैं, अजियत से दो चार हैं, लेकिन कोई बल्दियाती नुमाइंदा तवज्जो नहीं दे रहा। वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात सिंध और मेयर कराची नोटिस लें। कैमरामैन ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। एक्ट में तरमीम और दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा मुस्तरद। JUI की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध की भी शिरकत। अल्लामा राशिद सोमरो कहते हैं कि सिंध का पानी किसी को छीनने नहीं देंगे। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। एक्ट में तरमीम, दरियाए सिंध पर 6 कैनाल बनाने का मंसूबा, APC का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा। मुकामी होटल में JUI की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। APC के बाद मीडिया से गुफ्तगू में JUI रहनुमा अल्लामा राशिद सोमरो बोले, सिंध का पानी कहीं जाने नहीं देंगे। इरसा एक्ट में तरमीम और दरियाए सिंध पर 6 कैनाल के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस समझती है कि इरसा एक्ट में तरमीम और दरियाए सिंध पर बनाए जाने वाले 6 कैनालों के मंसूबों की तजवीज़ को फौरी तौर पर रद्द किया जाता है और इन इक़दामात को मुल्की मफाद और सूबा सिंध के मफाद के मनाफी तस्वर किया जाता है और इन मंसूबों को फौरी तौर पर रोकने का भरपूर मुतालबा किया जाता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो, वक्कार मेहदी, MQM के अब्दुल हसीब, नून लीग के सूबाई सदर बशीर मेमन ने भी JUI के मुतालबे की हिमायत की। हम इसको सीरियसली लेकर आपके सामने पेश हुए हैं कि हम इस मुज़र मंसूबे से इख्तलाफ रखते हैं और इख्तलाफ हमने सिर्फ ये पहली बार नहीं किया है, हमने तो कालाबाग डैम को भी बंद करा के अपना सबूत दिया है कि हम ऐसे पानी पर हमला बर्दाश्त नहीं करते। मैंने कहा कि इरसा एक्ट पे 1991 के अकॉर्ड पे पूरा मनोआन अमल होना चाहिए। APC के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली तजवीज़ को फौरी वापस लिया जाए। बसूरत दीगर न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध ने तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान कर दिया। पोलियो के खात्मे का भी अज़्म दोहराया। मुराद अली शाह ने 6 कैनालों का मंसूबा नाकाबिल कबूल करार दिया। वाज़े किया कि पानी पर समझौता नहीं करेंगे, सूबे के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है। नून लीग जो भी कमेटी बनाएगी उससे बातचीत करेंगे। 52 केस इस मुल्क में पोलियो के आए जब पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हुई। ये वो चीज़ें, इन सब पे हमारी नज़र है और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। चेयरमैन साहब चाह रहे हैं कि ये बातचीत करके और जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए। उन्हें मैंने कल टेलीविज़न पे देखा है, सुना है कि ये कमेटी को उन्होंने अनाउंस की है। अब ये पार्टी की लीडरशिप का होगा फैसला कि किस तरीके से इसको आगे लिया जाए। सड़कों और फुटपाथों पर कचरा फेंकने वाले सुधर जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डंडा उठा लिया। गंदगी फैलाने वाले को 3 साल कैद, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। मेयर कराची ने MQM को अब्बासी शहीद अस्पताल की खराब हालत का जिम्मेदार करार दिया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। अब्बासी शहीद अस्पताल की 50वीं सालगिरह, मेयर मुर्तज़ा वहाब का शहरियों को सस्ती और मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी का ऐलान। मेयर कराची के मुताबिक अस्पताल में CT स्कैन और मेमोग्राफी की सहूलियत सिर्फ 1500 रुपए में दस्तयाब होगी, जबकि KMC के सबसे बड़े मुर्दा खाने को भी दोबारा फाल कर दिया गया, जहाँ 600 मैयतों को इज्जत के साथ रखने की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे गरीब आदमी को तकलीफ होती थी कि अगर उसका कोई प्यारा बिछड़ जाए तो कोई जगह नहीं थी उसके पास डेड बॉडी रखने के लिए। आज
हमारे पास अब्बासी शहीद अस्पताल में 60 डेड बॉडीज़ को इज्जत के साथ, उस मैयत को एहतराम के साथ रखने का तरीक़ेकार हमने वज़ा कर दिया है और ये फैसिलिटी आज से खुल गई है। मेयर कराची ने शहर की सफाई के हवाले से सख्त इक़दामात का इंदिया दिया और कहा कचरा फैलाने वालों के खिलाफ 3 साल कैद और जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हमने म्यूनसिपल इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए हैं, जहाँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी होगी, यानी कि कचरा फेंका जाएगा, कचरे को जलाया जाएगा, चाइना कटिंग की जाएगी, नालियों को तोड़ा जाएगा, वो म्यूनसिपल इंस्पेक्टर अपना अपना काम करेंगे, वो मुताल्लिका इदारों की मदद करेंगे और उसमें 2 चीज़ें, एक फ़ाइन भी लगाएंगे और सज़ा भी हो सकती है, यानी कि 3 साल तक की सज़ा भी है और ग़ालिबन 50,000 तक का फ़ाइन भी है। तो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने की और मैं उम्मीद करता हूँ इससे निज़ाम में बेहतरी आएगी। सियासी मुखालफिन पे सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची ने कहा MQM के दौर में KMC के ज़ेर इंतजाम हस्पतालों की हालत बदतर हुई, जबकि जमात इस्लामी ने जिला वस्ती में अमराज कल्ब हस्पताल के मंसूबे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। शेख मुख्तार, सिटी 21। सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से कराची बार एसोसिएशन की इंतखाबी मुहिम जारी। मेंबर मैनेजिंग कमेटी के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल बासित के एजाज़ में वकला की जानिब से तकरीब का इनेकाद। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट। कराची बार में इंतखाबी मुहर्रका की तैयारी। सालाना इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम शुरू। मेंबर मैनेजिंग कमेटी के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल बासित के एजाज़ में वकला की जानिब से तकरीब मुनक़िद की गई। वकला की बड़ी तादाद ने अब्दुल बासित को फूलों के हार पहनाए। एडवोकेट अब्दुल बासित कहते हैं, कामयाबी के बाद वकला के काम करूँगा। मैं इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर वकला की उम्मीदों को पूरा करूँगा और वकला के जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा। दरअसल ग्रुप के जो है वो बेहद इसरार के ऊपर मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। वकला ने कहा कि अब्दुल बासित नौजवान हैं, वो वकला की नुमाइंदगी की सलाहियत रखते हैं। अब्दुल बासित साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं कि कराची बार के इलेक्शन 2025 में वो कंटेस्ट कर रहे हैं और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये बार के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। कराची बार के इंतखाबात 14 दिसंबर को होंगे, जिसके लिए उम्मीदवार मुतहरिक हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस, मुल्जिम जावेद को चश्मदीद गवाहों ने शनाख्त कर लिया। अदालत ने मुल्जिम जावेद और गुलनिसा को मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। गार्डन में रिहायशी आबादी के साथ डंपिंग पॉइंट के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने समाअत की सदा मंजूर कर ली। के इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से जारी किए गए डिमांड नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने डिमांड नोटिस मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान रेलवे डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मंशियात बरामदगी केस, अदालत ने गुज़िश्ता 10 सालों में बरामद मंशियात और तलब करने से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट गैर तसद्दी बख्श करार दी। महकमा दाखिला और एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अदालत ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 4 सूबों से बरामद मंशियात की रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा तालीम में बैनुल अक़वामी मनसूबों में नैब समेत दीगर अफसरान की बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनाती। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए कि आज के बाद तो सेशन जजेस पर मैं एतमाद नहीं कर सकता। अदालत ने AG सिंध को चीफ सेक्रेटरी से मुशावरत के बाद आगाह करने की हिदायत कर दी। सोने की कीमतों में रवा हफ्ते मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 12,800 रुपये और 10 ग्राम सोना 10,944 रुपये महंगा हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। बढ़ती हुई कीमतों से दुकानदार ज़हनी अजियत में मुब्तला। लियाकताबाद हैदरी जूलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर फराज अहमद का कहना है कि डॉलर महंगा हो या आलमी मार्केट में सोना, हर चीज का असर हमारी मुकामी मार्केटों पे पड़ता है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिससे कारोबार रवां दवां रहे। हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि हमारा है गरीब मुल्क पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर डॉलर बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा। एक चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही यहाँ पर, हमारी मईशत ख़राब होगी। मतलब हमारे एक तरफ से मार लगे ना, यहाँ से 4 जगह से हम ताजरों पे मार लगती है कि हमारी हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती कि जिससे कारोबारी हालात बेहतर हो। सोने की खरीदारी के लिए आए शहरियों ने शिकवा किया, सोने की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर है, मजबूरन सोना खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, कुव्वत खरीद में मिडिल क्लास के तो निकल चुकी है उसकी खरीद से, तो बाकी जो है वो, लेकिन लोगों की ज़रूरत ही ऐसी चीज़ है तो उसमें यह है कि ज़रूरत में आ जाती है।
बाकी जो है लेकिन बहुत महंगाई हो गई है पहले से बानिस्बत। मैंने सोना तो अब ये हो गया है कि नहीं, बंदा सोचता है कि ना बना है, क्योंकि यहाँ पे जब शॉप पे आए और इनकी कीमतें पता चलती हैं तो फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें, अब आगे कोई हल नहीं है इसका, तो कम होनी चाहिए ना ख़वातीन के लिए। तो रवा हफ्ते 1 तोला सोना 12,800 रुपए इजाफे से 2,82,700 रुपए और 10 ग्राम सोना 10,944 रुपए इजाफे से 2,42,370 रुपए पर पहुंच गया। कैमरामैन हसन अजीज के साथ अयाज राना, कराची।